Hello guys, what's up, Kya Chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. Whether you are confused between giving exams in December 25 or June 26. So let me clear this confusion. If you watch this video till the end, your confusion will be entirely cleared. With respect to CMA Intermediate DTI-DT examination, let me tell you what is the difference between December 25 and June 26. If you give examination in December 2025, you will actually have to study Finance Act 2024. In that way, Finance Act 2025 will not be applicable for December 25 exams. But if you are going to give examinations in June 2026, you will have to study the updated law which is relevant as of now, which is Finance Act 2025 will be applicable in your syllabus. So before choosing the term, you must know that if you are giving examination in June 2026, please don't take recorded lectures. You should go for live lectures if it is available now, because now all the live lectures are going to start even for intermediate taxes for June 2026. Both the terms, the syllabus is different. यानी December 25 में you will have to study Finance Act 24 and December 25 के बाद June 26 में you have to study Finance Act 25. Next, all the notifications and circulars, if you are giving exams in December 25, 6 months prior to this particular month, that is 31st May 2025, all the notifications, circulars which came in the income tax law as well as GST law till 31st May 25 is going to be relevant for December 25 exams. But if you are going to give exams in June 2026, then all the amendments, notifications, circulars which are relevant till 30th November, which has come in the statute till 30th November, will be applicable in your examinations. ठीक है. Next, sir, December 25 definitely will be an aggressive target. I would not say that it is very easy. I will also not say it is very difficult. If you can manage to take out at least 3 hours daily for lectures, ठीक है, 3 hours daily अगर आप अपने लिए निकाल सकते हो डेली फॉर गिविंग टाइम फॉर लेक्चर्स ऑफ DT IDT, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 280 टू 300 आवर्स का टारगेट रहेगा. 280 टू 300 आवर्स का टारगेट रहेगा. नाउ अगर आप 280 से 300 आवर्स को कंप्लीट कर सकते हो 100 डेज में, 100 डेज प्लान आपके लिए रेलिवेंट है. 100 डेज में डेफिनेटली आप DT IDT के लेक्चर्स को कंप्लीटली वॉच कर सकते हो. DT IDT दोनों के लेक्चर्स को अगर आप एवरेज में 3 आवर्स का अपना प्लान लेके चले तो विच इज डेफिनेटली पॉसिबल. यानी कि योर टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन इज 31st अक्टूबर. आप 31st अक्टूबर तक टारगेट लेके चलो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्लस अभी जुलाई में 10 डेज तो मिनिमम बाकी है, तो डेफिनेटली आपके लिए 100 डेज बनता है और 300 आवर्स का आराम से आप 31st अक्टूबर तक लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो. दिस इज डेफिनेटली एन एग्रेसिव टारगेट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस. अगर आप जून में देने का सोचते हो तो आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है. आराम से रिलैक्स वे में क्लासेस करिए. दैट इज वाई फॉर June 26 आवर लाइव बैच इज स्टार्टिंग ऑन 21st ऑफ जुलाई. ठीक है, अपना लाइव बैच 21 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है. आप ज्वाइन कर सकते हैं 21 जुलाई वाले लाइव बैच को, प्लस उसमें आपको रिकॉर्डिंग का भी बैकअप मिलेगा पूरा. लेकिन इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन इन December 2025, we will not advise you to see the live lectures. You should go for recorded classes which is 100% relevant for your examination term which is provided by us. यहाँ पे आप recorded lecture जो है जाके start कर सकते हो. Now you need to decide whether you want to give in December 25 or not. I think if you are starting to study from now, definitely you target to complete syllabus by October, watching all the lectures by October. 1 month revision and mock test more than sufficient. You should definitely aim for December 25. Go for this target guys. बट कोई स्टूडेंट होता है नहीं मेरे को इतना हड़बड़ी नहीं करना, मुझे रिलैक्स वे में पढ़ना है, मैं इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में नहीं पढ़ सकता, मैं December 25 के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, तो आप प्लीज़ आग बंद करके लाइव लेक्चर्स में आइए. टैक्सेशन का न्यू लॉ पढ़िए, फाइनेंस एक्ट 25 के हिसाब से पढ़िए, अपडेटेड लॉ पढ़िए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है फाइनेंस एक्ट 25 में, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ. Sir, if you will join the batch of June 26, that will be completing latest by 31st January 2026. 31st January तक हम कंप्लीट कर देंगे, मतलब ये तो एकदम मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है. एंड December 25 में अगर आप देना चाह रहे हो तो ये आपका डेडलाइन होना चाहिए कि 31st अक्टूबर तक आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो. डेफिनेटली इफ यू गिव वन ग्रुप इन December 25,
ठीक है, इट विल सेव योर टाइम। अब नेक्स्ट टर्म में थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा। आप दिसंबर 25 में एक अटेम्प्ट निकाल लोगे, एक ग्रुप निकाल लोगे, जून 26 में दूसरा ग्रुप निकाल लोगे। बट इफ यू गिव बोथ द ग्रुप्स इन जून 26, क्या पता एक ग्रुप निकले नहीं निकले, आपको वापस से दिसंबर 26 में। मैं एक होता है ना नेगेटिव माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू, ऐसा नहीं है कि आपको मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। आपका एक्स्ट्रा 6 मंथ्स डेफिनेटली लग सकता है फॉर जून 26। मतलब आप बेसिकली एक तरह से फाइनल के लिए लेट प्रिपेयर कर रहे हो। ये 6 मंथ्स बेसिकली क्या है, फाइनल के लिए आपका लेट स्टार्ट हो रहा है अगर आप दिसंबर 25 में अटेम्प्ट नहीं देते हो तो। ठीक है, तो गाइज ये बेसिकली मोटा मोटी मैंने एक एनालिसिस किया कि टैक्सेस के फॉर्म में इट इज जस्ट अपॉन योर टारगेट्स, कि आप अगर एग्रेसिव टारगेट लेना चाहते हो तो प्लीज गो फॉर दिसंबर 25। अगर आप एग्रेसिव टारगेट नहीं लेना चाहते, आप इजी वे में पढ़ना चाहते हो, स्मूथ स्टडी करना चाहते हो, रिलैक्स वे में पढ़ना चाहते हो, एक दिन में 3 घंटा देने की क्षमता नहीं है, तो प्लीज सोचना भी मत, जून 26 में चले जाना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर वो क्लासेस तो दिसंबर 25 टर्म का ही लेते हैं, लेकिन वैलिडिटी जून 26 तक का ले लेते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। क्योंकि आप दिसंबर 25 की वैलिडिटी लोगे तो बाद में आपका एक्सटेंशन कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। तो आई वुड से कि आप ऐसा भी कर सकते हो, दिसंबर 25 की क्लासेस ले लो और जून 26 तक की वैलिडिटी ले लो, ये सोच के कि मेरा ये जून 26 चलेगा। यहाँ पर आपको एक है कि अमेंडमेंट क्लासेस आपको अलग से हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की दरकार नहीं है। सर एक बार अब हमें बता दो कि कौन कौन से चैप्टर्स में बेसिकली फाइनेंस एक्ट 25 में अमेंडमेंट आया है। तो देखो गाइस, ऐसे तो एक एक अमेंडमेंट कुछ कुछ चैप्टर्स में आए हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं वो इनकम टैक्स रेट्स में सबसे ज़्यादा भयानक अमेंडमेंट आया व्हेन इट कम्स टू न्यू स्लैब रेजिम। उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में Q&As में चेंजेस आ जाएगा। तो इनकम टैक्स रेट्स में बहुत सारा चेंजेस आया व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन, व्हेन इट कम्स टू टैक्स स्लैब्स, व्हेन इट कम्स टू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। एग्जेम्पशंस चैप्टर में सेक्शन 10 में चेंजेस आए, कैपिटल गेन में एक पॉइंट में चेंजेस आ गया, अदर सोर्सेज में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में, चैप्टर 6 के डिडक्शंस में 2-3 चेंजेस है, टीडीएस टीसीएस में मेजर चेंजेस है, टीडीएस टीसीएस एंड इनकम टैक्स रेट्स में मेजर चेंजेस है। ये चैप्टर के बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो अगर आप जून 26 में एग्जाम देने वाले हो तो भाई ये 2 चैप्टर तो बिल्कुल भी आप पुराने लेक्चर से देख मत लेना। टनेज टैक्सेशन स्कीम, ये सारे फाइनल के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, सीएमए फाइनल डीटी के लिए। अपील्स एंड रिवीजन में भी बहुत सारे चेंजेस है, पेनल्टीज हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, असेसमेंट प्रोसीजर्स में स्पेशली सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट होता है उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं फाइनेंस एक्ट 25 में। तो ये तो मैंने इनकम टैक्स का बोला। जीएसटी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, जीएसटी का चेंजेस मैनेजेबल है, वो ज़्यादा नोटिफिकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू रिलीज किया जाता है। बट शॉर्ट में मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के फॉर्म पे बताया जाए कि आप कंफ्यूज्ड मत हो, आपको दिसंबर 25 में जाना है कि जून 26 में जाना है। व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स मैं नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है कि जून 26 में उनको एकदम ही एक होता है ना नया लॉ पढ़ने को मिलेगा। बट हाँ, अगर आप अपडेटेड लेक्चर्स के साथ पढ़ते हो तो उसका एक अलग ही फैसिनेशन होता है। अगर आप जून 26 के लिए अभी डिसाइड कर लो तो अभी ही डिसाइड करना, नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं, तो प्लीज गो फॉर दिसंबर 25। बात मानिए, अगर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता सर बाद में डिसीजन लेंगे, कोई बात नहीं, आप दिसंबर 25 के लिए प्रिपेयर करो, वरना आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप जून 26 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप दिसंबर 25 के लिए प्रिपेयर करो, अमेंडमेंट की जिम्मेवारी मेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिसंबर 25 तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं है, आपको मैं 3 या 4 अमेंडमेंट क्लास करवाऊंगा, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि मैं तुम्हें कुछ चेंजेस करवाऊंगा कि देखो ये जो टैक्स स्लैब तुमने पढ़ा था अब ये चेंज हो गया है, ये तुमने जो रिबेट पढ़ा था अब ये चेंज हो गया है, ये डिडक्शन का लिमिट था ये चेंज हो गया है, वो सारा थोड़ा सा हम तुमको रेक्टिफाई कराएगा, बट वो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है सर, दिसंबर में देना है कि जून में देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू शुड गो फॉर दिसंबर, मेरा तो यही से रहेगा, दिसंबर में जाना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत अभी करिए, एग्रेसिव टारगेट लीजिए, क्या पता आपका कंप्लीट ही हो जाए, क्या पता आप ग्रुप पर क्लियर ही कर लो दिसंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। बट कोई स्टूडेंट है सर, हम वर्किंग है, हमारे पे कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, हम इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम स्लो लर्नर है, देखो डेफिनेटली इसमें फास्ट लर्निंग तो चलना पड़ेगा, मतलब फटाफट क्लासेस करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और इसके ऊपर हम गौरव सर, विष्णु सर मिलकर एक मस्त लेक्चर बनाया आप लोग के लिए, हमारा एपिसोड चल रहा है, टॉक शो चल रहा है, वहाँ पे हमने आपके लिए पूरा स्टडी टाइम टेबल रूटीन समझाया है। तो स्टडी टाइम टेबल रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा।
ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन यूजफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए कंटेंट को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल के जो मेजर व्यूअर्स है वो नॉन सब्सक्राइब करके रखे हमारे चैनल को। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और तो ही ये चैनल और लोगों को भी विजिबल होगा। थैंक यू सो मच। कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरीज है तो विल डेफिनेटली एड्रेस इट विद इन मैक्सिमम विद इन वेरी लेस टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।